is going to satisfy you with the finest of blessings. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको सर्वोत्तम आशीषों के साथ तृप्त करेगा। In Joel 2:26, योएल 2 और वचन 26 में the Almighty God promises, "You shall eat in plenty कि तुम पेट भर करके खाओगे and be satisfied, और संतुष्ट होगे and praise the name of the Lord, और यहोवा के नाम की प्रशंसा करोगे, who has dealt wondrously with you." जिसने तुम्हारे साथ आश्चर्य कर्म किए हैं। Yes, the Lord is a wonder. हाँ, परमेश्वर एक आश्चर्य है। In Isaiah 9:6, the prophet says, "He shall be called wonderful." यशायाह 9:6 में कहता है, उसका नाम अद्भुत होगा। God wants to do wonders for you. परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करना चाहता है। When thousands of people came to listen to Jesus, जब हजारों लोग प्रभु यीशु को सुनने के लिए आए, in Matthew chapter 14, तो मत्ती अध्याय 14 में, Matthew chapter 15, मत्ती अध्याय 15 में Jesus said, "Feed all these people." यीशु ने कहा, इन सबको भोजन कराओ। Where is a shop which can supply food for all these people suddenly? अचानक कितने लोगों को भोजन दे सके, ऐसी कोई दुकान यहाँ कहाँ है? Remember, they were in a wilderness. याद रखें, वे एक जंगल में थे, पहाड़ी पर। That's where Jesus said, "I want to feed all these my dear children." और वहीं पर यीशु ने कहा, मैं अपने इन प्रिय बच्चों को यही तृप्त करना चाहता हूँ। That's the heart of Jesus. यीशु का मन यही है। He is wonderful. वो अद्भुत है। He does wonders which cannot be और fathomed. वो ऐसे आश्चर्य काम करता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। He does miracles which cannot be counted. वो इतने चमत्कार करते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। Job 5:9, अय्यूब 5:9, Job 9:10. अय्यूब 9:10, Because he loves the people. क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है And he wants to feed you with the finest और वो blessings. सर्वोत्तम आशीषों से आपको तृप्त करना चाहता है And so he does wonders. और इसीलिए वो अद्भुत कार्य करता He है। will do it for you right now. इसी समय वो आपके लिए ये करेगा। In Psalm 81 and verse 16, भजन 81 वचन 16 में the Bible says, "He will feed you with the finest of wheat लिखा है, वो तुझे सर्वोत्तम गेहूं से तृप्त करेगा and satisfy you with the honey from the rock." और चट्टान के मधु से तुझे तृप्त करेगा। That's what Jesus did for those people. यीशु ने उन लोगों के लिए यही किया। He took 5 loaves, उसने 5 रोटियां ली, blessed it, उसे आशीष दी, gave thanks, धन्यवाद किया, broke it. उसे तोड़ा। It was indeed his own body which he gave to be broken, वास्तव में ये उसका ही शरीर था जो तोड़ने के लिए उसने दिया, so that the bread would multiply. ताकि वो रोटी जो है बहुगुणित हो जाए। Bread multiply, और वो रोटी बढ़ती गई, multiply, बढ़ती गई, because Jesus paid the price. क्योंकि यीशु ने उसकी कीमत चुकाई। Jesus allowed his body to be broken on the cross, क्रूस पर अपने शरीर को यीशु ने टूट जाने दिया, that you may be satisfied with the finest of wheat, कि आप सर्वोत्तम गेहूं से तृप्त किए जाएं with honey from the rock. और चट्टान के मधु से तृप्त हों। That is the heart of Jesus. यह है यीशु मसीह का हृदय। He loves you as a mother. एक माँ की तरह वो आपसे प्रेम करता है, Your heavenly Father loves you. क्योंकि यीशु आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है। आप सर्वोत्तम आशीषों से तृप्त होंगे। The Bible says, "Everyone who came to Jesus was fed, और बाइबल कहती है, हर एक जो यीशु के पास आया वो तृप्त किया गया and they went back satisfied." और वो संतुष्ट होकर वापस गए। He will keep you satisfied, providing everything for your spiritual needs and also for your physical needs. आपकी शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वो आपको संसार में संतुष्ट रखेगा। Today, this Jesus is with you. आज ये यीशु आपके साथ है, Rejoice over him. उसके ऊपर आनंद मनाएं। Say, "Lord, you are wonderful. कहे, प्रभु जी आप अद्भुत हैं, You are wonderful. आप अद्भुत हैं। Whatever the locusts have eaten, you will give it back to me, Lord. जो कुछ उन टिड्डियों ने खाया आप उसे मुझे वापस लौटाएंगे And you will deal with me wondrously. और आप मेरे साथ अद्भुत कार्य करेंगे। Father, पिताजी, do it for your son. अपने बेटे के लिए यही करें। Deal with your son wondrously. अपने बेटे के साथ अद्भुत कार्य करें प्रभु। Deal with your daughter wondrously. अपनी बेटी के साथ अद्भुत कार्य करें। Provide for them, Lord. आप उनके लिए सब कुछ आपूर्ति करें। Give them grace to eat all the blessings which you give them. उन्हें अनुग्रह दें कि आपकी दी हुई हर एक आशीष को वो खाएं। Give them a satisfied life. उन्हें एक संतुष्ट जीवन प्रदान करें। But God is going to help you. लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता The करेगा। Lord is your Father.
यहोवा परमेश्वर आपका पिता He will है, establish you and grant you a greater blessed future. वो आपको एक आशीषित भविष्य दे करके स्थापित करेगा। You will carry everyone in your home. आप अपने परिवार में हर एक को लेकर चलोगे। Build her life again, Lord. प्रभु उसके जीवन को पुनर्स्थापित करें। Prosper everyone who has gone through loss. हर एक जो हानि से गुजरे आप उन्हें उन्नत करें, Establish them. उन्हें आप स्थापित करें, Wondrously provide for them. अद्भुत तरीके से उनके लिए हर एक चीजों की पूर्ति करें Grant them a golden future. और उन्हें एक स्वर्णिम भविष्य प्रदान करें। Satisfied with every blessing. हर एक आशीषों से वो संतुष्ट हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।